So, hello, welcome everyone to join us on the interview session today. And today we are interviewing someone her name is Rucha Joshi. एंड उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है. बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं. इसरो, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ इसरो? मिशन मंगल मूवी देखा आपने? सो इसरो इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, and she's been trained from ISRO on satellite remote sensing, GIS. She's worked with National Institute of Oceanography, National Environment Engineering Research Institute (NEERI), and she's from CDEC, NASA. आप जो नाम बोलेंगे ना वो सब कुछ है. और she is वो जो साइंस के बच्चे होते हैं ना, जो बचपन में बहुत साइंस पढ़ते हैं, शायद बड़े होके ऐसे दिखते होंगे. That is what I can understand. So she's highly educated, and amazingly, she has written her book on relationship, because relationship is as complex as rocket science. Okay, that's what I believe in. उतना क्लियर नहीं होता है सब कुछ जैसा हम चाहते हैं. So sometimes it's difficult. She's also pursuing PhD from BIT, Ranchi. So soon she will be doctor too, and she it looks like बहुत ज्यादा एजुकेशन लव है कि पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई में कुछ छोड़ा ही नहीं है रुचा ने. अभी पढ़ना नहीं, अभी शी इज गॉन टू नेक्स्ट लेवल. अब पढ़ाना है. So पढ़ाना मतलब now she started coaching also. She started write book also. It is her book, and amazingly book launch hote hi it became an Amazon #1 best selling book. So it loved by a lot of people. Good reviews we are getting on the book, and I really love a lot of authors, specifically coaches also, not only authors. बहुत सारे authors और coaches रहते हैं ना, they shy away talking difficult topics. So हम simple topic लेते हैं लाइफ में. जैसे मेरे भी simple topics हैं. So मेरा health है, sales है. So every topic is good topic, but simple मतलब there are some topics which are taboo, and people shy away talking about those topics. But I see courage in few people who decide कि नहीं, मेरे को इन topics के बारे में बात करना है. And that is good, because you don't understand someone who's suffering. They are looking for a small ray of hope कि कहाँ पे इसका solution मिलेगा. मतलब बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन वो तिनका आएगा कहाँ से? So some people are like that on the earth, जो बहुत सारे तिनके बनाते हैं जिनके ऊपर कुत्तों को सहारा मिलता है. And we're going to talk a lot about relationship. Now, before we get into a book, I want Rucha to introduce herself. Rucha, अपने बारे में बताइए. मैंने तो जल्दी में बताया. So tell us in brief, from your childhood, education, and introduce yourself to all of us. Yes. So first of all, good evening, everyone. Am I audible and visible properly? Yes. Okay. So कैलाश सर ने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है. I am a simple person as you are, and बचपन से मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे पापा भी लाइव है, he will be agree with this, कि मैं कोई extraordinary student नहीं थी. I was a below average student who used to get always marks in between 50%, 60%, not more than 70%. लेकिन हर किसी के लाइफ में एक पॉइंट आता है जो उसका टर्निंग पॉइंट होता है, और जिसके बाद उसका ग्राफ सीधे रॉकेट निकल जाता है उसका. तो दैट पॉइंट केम टू बी माय लाइफ इन माय ग्रेजुएशन व्हेन आई ऑप्टेड फॉर माय फेवरेट सब्जेक्ट, दैट वाज जूलॉजी. और किसी ने नहीं सोचा होगा कि जूलॉजी की बंदी जो लाइफ साइंस जानती है, जो मेडिकल साइंस जाने की इच्छा रखती है, वो लड़की सैटेलाइट and computer science में जाएगी. Yes, amazing. And I used to fear a lot for mathematics. Even किसी ने नाम भी बोल दिया ना mathematics, तो I used to cry. And then later on I got my gold medal in statistics at my MTech. Wow. तो लाइफ चेंजेस होते हैं. उसके बाद आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज रिसर्चर. मैं पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रही हूँ, मैं सीडैक में प्रोफेसर रही हूँ. आई यूज्ड टू टीच नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल बैचेस, तो एक्सपोजर काफी रहा है. दैट्स व्हाई आई लव टॉकिंग टू पीपल एंड कनेक्ट विद देम. इसकी वजह से ही मुझे बहुत से लोगों को जानने का मौका मिलता है.
सो साइकोलॉजी जानने का मौका उसी से मुझे मिला, लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। एंड देन वन फाइन डे मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा मिला जिसकी वजह से मैंने सोचा कि नाउ इट इज द टाइम कि लोगों ने बहुत चुप रह लिया, नाउ समवन हैज टू ब्रेक द आइस एंड वन मस्ट ब्रेक दैट टैबू एंड वन हैज टू स्पीक अबाउट इट। तो अरे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है रुचा, you know, I was not aware that you're a geology student and मुझे लगता था you were a physics mathematics student, but you broke my lot of myths today. But one more thing I want to know, if you look back your life, पीछे मुड़ के देखोगे तो what would be your biggest turning point in your life, जहाँ से life turn around हो गई, कौन सा moment था वो? You know, एक फ्रेंड ने ना मुझे बोला था, I was really struggling with my 12th standard. तो मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आता था, वो लेटर्स आर डांसिंग वगैरह नहीं होता है, वो वाला मेरा सिचुएशन था। मुझे टीचर्स क्या पढ़ाते हैं कुछ समझ में नहीं आता था। सो व्हाट हैपेंड, यू नो, जिसको बोलते हैं ना कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। तो मैं आज ये लाइव बताने जा रही हूँ कि व्हाट वाज माय फेलियर। आई एम अ फेलियर कैंडिडेट हु वाज ऑल सब्जेक्ट्स डाउन इन फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी। Oh, okay. Not all subjects, but I had to drop out from the college for 1 year. तो ये मेरी कहानी है। वहाँ से जो शुरू हुआ, मेरे एक दोस्त ने मेरा स्ट्रगल देख के मुझे बोला, रुचा, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ नो, यू शुड रीड शिव खेरा का यू कैन विन। You can win, yes. And I read it in one night. और मुझे लगा यार क्या है, मतलब इससे कैसे लाइफ चेंज होने वाला है। आई डोंट नो कि लाइफ कैसे चेंज हुई, बट लाइफ चेंज हुई। Yes. कैसे चेंज हुई थोड़ा बताएंगे हमको। और अभी when you look back now, you're quite mature, you understand lot of better things. क्या हुआ जिसके कारण लाइफ चेंज हुई? You know, that time I could gather the courage to tell my parents that I don't like mathematics and I love zoology or biology. और मैं गिरते पड़ते कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मैं जो भी करूंगी, मैं कोई फालतू सा सब्जेक्ट ले लूंगी, लेकिन मैं उसमें बहुत अच्छा करूंगी। तो मैंने zoology लिया एंड यू वोंट बिलीव, मेरा थर्ड ईयर का जब रिजल्ट आया, आई हैड सिक्योर्ड 87.87%। वो फर्स्ट ईयर ड्रॉप के बाद डायरेक्ट थर्ड ईयर में 88%। सेकंड ईयर में आई वाज 74% एंड लास्ट ईयर वाज कंप्लीटली zoology व्हिच वाज माय फेवरेट। तो 87% सीधा। सो वहां से फिर ये सैटेलाइट एंड व्हाई दिस साइड ऑफ द करियर यू चूज? कुछ अलग करना था। यू नो, हर कोई इंजीनियर बनता है, हर कोई डॉक्टर बनने की चाह रखता है। डॉक्टर बनने की चाह मेरी भी थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई। अगले 1-2 साल में हो जाएगी पीएचडी। या तो इस वजह से मुझे कुछ अलग करना था। एंड दैट टाइम ये सैटेलाइट्स वगैरह, इंडिया वाज इनटू लॉट ऑफ सैटेलाइट्स, अटल जी थे उस वक्त, तो इसका ग्रोथ बहुत हो रहा था। एंड देन आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड कि यार इंडिया बहुत आगे जा रहा है और इसका प्रोस्पेक्ट्स बहुत है। एंड यू नो, मैं फिजिक्स में एकदम कच्चा नींबू थी, कच्चा नींबू, यू नो। बट स्टिल यू नो, जूलॉजी से आई स्टिल अमेज कि जूलॉजी से फिजिक्स मैथमेटिक्स की तरह, आई डोंट नो हाउ डिड यू डू दैट। यू नो, मेरा एक मानना है, आई बिलीव कि जो भी करो बहुत अच्छा करो। मैं कोई मीडियोकर चीजों पे सेटल नहीं हो सकती हूँ। सो उसकी वजह से जो चीज करती हूँ वो दिल लगा के करती हूँ एंड आई गेट सक्सेस इन दैट। वाओ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। या सो अभी यू बीन डूइंग गुड एंड लॉट ऑफ यू नो गुड लोगोस, ब्रांड्स ऑन योर शोल्डर, गवर्नमेंट के बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। सो सडनली व्हाट हैपेंड दैट यू डिसाइडेड टू राइट? क्या हुआ कि ऐसा लगा कि किताब लिखना चाहिए? यू नो, आजकल कैलाश जी रिलेशनशिप्स का नेचर बहुत चेंज हो गया है। पहले के ज़माने में ना हमने अपने माँ बाप, हमने अपने नाना नानी, दादा दादी को देखा है कि बनती भी नहीं है तब भी वो निभाएंगे, ये निभाने वाला कल्चर था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कल्चर आया जिसमें लोग, ज़्यादातर औरतें सफ़र होती थी, विक्टिम्स होती थी।
धीरे धीरे औरतें बाहर निकलने लगी, पैसे कमाने लगी, देन दे स्टार्टेड गेटिंग नो शिट फ्रॉम मेन, और उसके बाद फिर क्लैशेस हुए और लड़ाई झगड़ों की वजह से मैरिजेस टिकना बंद हो गया। Yes. लेकिन इसमें ना जब आप डिवोर्स के रीजंस देखते हो, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, ईगो क्लैशेस है, फाइनेंशियल रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है। लेकिन जब एक चीज हमारे दरवाजे पे आके पहुंचती है, और जब उसकी आहट तब होती है जब वो हमारे दरवाजे पे पहुंचती है, तब आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है। एंड a very mishap happened with my childhood friend, she is my best friend, and उसके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ जिसकी वजह से her life got shattered. She went into the valley of depression, and उसकी वजह से एक बहुत ही रेयर सा, जिसके बारे में लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, या that is a taboo subject, उस पे एक social stigma attached है, तो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। Such women are suffering in marriages for lifelong. तो ये कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। एंड उसकी वजह से मैंने सोचा कि इसमें कोई इंडियन राइटर ने कुछ लिखा भी नहीं है कैलाश जी, मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखा है। ओके, अच्छा पहले आप अपना सब्जेक्ट बताइए, क्योंकि अभी तक हम मिस मैरिजेस बोल रहे हैं। yes. मिस मैरिजेस, बट मिस मैरिजेस कैन बी फ्रॉम मल्टीपल रीजंस, बट Rucha is specifically touch point one of the taboo topic which no one is talking about. Yes. So mismarriages is generally a term coined for mixed orientation marriages. अब मैं बताती हूँ mixed orientation क्या होता है। For example, in a normal marriage, a boy marries to a girl and he loves that girl loves a man. लेकिन यहाँ पे मिक्स ओरिएंटेशन मैरिज में ये होता है कि अ बॉय मैरीज अ गर्ल, मतलब हेट्रोसेक्सुअल मैरिज होता तो है, but that man is having desire for another man, or that woman is having desire for another woman. तो either or इसमें कुछ भी हो सकता है कि one of the partners is having sexual orientation as homosexual. Okay. Yeah, so as it was my female friend and उसकी साइड मुझे पूरी पता थी, तो इस वजह से मैंने ये वाली बुक जो है वो फीमेल ओरिएंटेड लिखी है कि फीमेल्स पे क्या गुजरती है and how they tackle the situation. It's right also because you know as a female you can understand females perspective better. Yeah. क्योंकि you know whatever you say, however you say, male and female are different. So इमोशनली भी बहुत डिफरेंट रहते हैं, इमोशनली तो बहुत डिफरेंट रहते हैं, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ द शक्ति पार्ट ऑफ इट। आई ऑलवेज कॉल शिव एंड शक्ति, तो शक्ति को आप अच्छे से समझ पाओगे। नाउ आई वांट टू नो व्हाई बुक। सो बचपन में कहाँ से लगा कि कभी लाइफ में बुक लिखना है, ये बुक लिखना है, नॉट दिस टॉपिक बट एनी टॉपिक, व्हाई दिस केम टू योर माइंड, कहाँ से आया बुक लिखने का? सर एक्चुअली ना एक फनी कहानी है इसके पीछे। मेरे लाइफ में मतलब मैं इतनी जगह जगह पे घूमी हूँ, अलग अलग लोगों से मिली हूँ, तो मेरे पास ना वास्ट एक्सपीरियंस है लोगों का, फ्रेंड्स का, फूड का, प्लेसेस का, ट्रैवल, एवरीथिंग। तो मैं लोगों को हमेशा एंटरटेन करती हूँ अलग अलग कहानियां बता के। तो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी, रुचा यार तेरे को ना इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो तुझे किताब तो लिखनी है। एंड मैं इमीडिएटली चने के झाड़ पे चढ़ जाती थी। यस, आई वांट टू राइट अ बुक, समडे आई विल बी ऑथर, कोई मेरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेगा। तो ये जो कीड़ा था मुझ में, वो मेरे ग्रेजुएशन से मेरे अंदर आ गया था। ग्रेजुएशन से जी। ये फर्स्ट ईयर में कि सेकंड और थर्ड में? ये भी इम्पोर्टेंट है, भी जानना। फर्स्ट ईयर इज वेरी डिफरेंट देन सेकंड एंड थर्ड। नहीं, ये कीड़ा आया जो ट्रांजिशनल फेज था, जब मैं फेल हुई थी, और फेल से जब मैं सेकंड ईयर कॉलेज में गई, तो उसके बीच में बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस आए थे। लोगों ने बुली किया था कि यू आर अ फेलियर, ये वो। एक डॉक्टर की बेटी है, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स है, मेरा भाई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस इंजीनियर है, और उसकी बहन इतनी बुद्धू कि वो फेल हो जाती है। तो लोगों ने बहुत बुली किया था, और बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंसेस थे, और आई एम लिटरली थैंकफुल टू माई लाइफ कि मेरे साथ ज्यादा बिटर एक्सपीरियंसेस है, बिकॉज ऑफ देम आई बिकेम मोर मैच्योर ऑफ टुवर्ड्स लाइफ।
फेलियर इज जस्ट टेल्स यू दैट यू नीड टू इम्प्रूव समथिंग जेन्युइनली, और आपने समथिंग को तो फंटास्टिकली इम्प्रूव कर दिया, तो लाइफ वाज सपोज्ड टू चेंज, होना ही था ये तो। और कितने सालों से सोच रहे थे कि बुक लिखना है, कभी तो लिखेंगे? लगभग 20 साल। मतलब ये एक फनी सा आइडिया था दिमाग में कि कभी मैं शायद बुढ़ी हो जाऊंगी तो तब मेरे को नानी नानी बोलने वाले बच्चे होंगे तो उनको मैं अपनी किताब पढ़वाऊंगी। So what happened? फिर ये अचानक ये बुढ़ापे की जगह यंग जनरेशन यूथ में ही किताब लिख डाला। What happened in 2020? 2020 में बहुत सारे लोगों को नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, बट वी कम फ्रॉम अ कम्युनिटी, सुपर फास्ट ऑथर कम्युनिटी, जहाँ पे 2020 वाज पॉजिटिव बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिखी है। सो व्हाट हैपेंड इन 2020 विद यू व्हिच इंस्पायर्ड यू टू फिनिश योर बुक? जिसकी शुरुआत, मतलब जो किताब मैंने लिखी है, इसकी शुरुआत हुई 2019 में जब आई मेट दैट फ्रेंड एंड शी वाज डिवास्टेटेड लाइक एनीथिंग। जो एक कॉन्फिडेंट सी बंदी थी, क्लास टॉपर रहा करती थी, वो बंदी का एकदम से मुरझाना, दैट वाज समथिंग मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी उसको। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, ये ऐसी चीज है जिसके लिए बोलना तो बनता है। सो दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं इस पे थोड़ा सा रिसर्च करूंगी एंड देन आई विल राइट अ बुक ऑन इट। एंड इट इज अ नीड ऑफ आवर, क्योंकि आज मैं बहुत सारी ऐसी औरतों को जानती हूँ कैलाश सर, बहुत सी औरतें देश भर से, दुनिया भर से मेरे साथ कनेक्टेड है फेसबुक पे, जो डिकेड्स बिता चुकी है अपनी शादी में। They are literally right now at the age of my eldest client is 69 or 70 years old. Oh my God, 69, 70. So पूरी जिंदगी निकाल दी एक तरीके से, पूरी जिंदगी बिता दी। Now she is thinking what to do. अब मैं कैसे बाहर निकलूं यहाँ से। So बहुत सी ऐसी औरतें हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये अमेरिकन कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है, नहीं, आज ये चीज आपके दरवाजे तक आ पहुंची है। आपको इसको समझना है, आपको अपने बच्चों के साथ इससे डिस्कस करना है, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। इट इज नॉट दैट आई हैव डन सम गे बैशिंग इन माय बुक, नो इट इज नॉट। आई डू नॉट हेट homosexual people, they are born that way and I do accept them as they are। तो सोसाइटी का भी नजरिया इस तरीके से अगर बदल जाता है एंड सोसाइटी बिकम्स मोर एक्सेप्टेबल, तो किसी भी औरत के साथ या इवन किसी भी मर्द के साथ ये मिक्स ओरिएंटेशन मैरिज में जिंदगी लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइफ सेंटेंस की तरह बिताने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट। सो यू वर्क विद देम, एज देम कोच देम, आप हेल्प करते हो उनको, एंड यू आर हेल्पिंग देम टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मे बी मेंटली एंड मे बी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी कैसे बाहर आना है। बिकॉज वी ऑल्सो लिव इन टू वर्ल्ड्स, एक तो दुनिया है बाहर की और एक अंदर की दुनिया है। अंदर की दुनिया ज्यादा परेशान करती है, उसको अगर पकड़ के रखा तो बाहर की दुनिया को संभालना आसान हो जाता है। बिल्कुल। सो यू वर्क ऑन बोथ द एरियाज फॉर द पीपल। यस। और आई रिमेंबर यू अटेंडेड आवर वन डे बूट कैंप। यस। तो उसमें हमारा एक एक्टिविटी रहता है दैट यू अनाउंस द बुक ऑन फेसबुक। या यू अनाउंस दैट डे, आपने किया था अनाउंस? जी। So when people got to know that you are writing a book, how was the reaction? Positive, negative both. कैसा reaction आया? दोनों बताइए, because you know I meet lot of authors, they get scared कि लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, and आपका तो टॉपिक ही ऐसा है कि negative experience कुछ तो आना ही है। जी। तो मैं negative experiences आपको पहले बता देती हूँ। negative experiences भी बहुत आए। जैसे लोगों ने पूछा, जो सक्सेस से मेरे शायद में भी उनको परेशानी थी, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तेरा करियर को ब्रेक लग गया क्या, कि ये करने पे उतर गई तू। फिर कुछ लोगों ने पूछा तेरे को हुआ क्या है, व्हाई आर यू राइटिंग सच वियर्ड थिंग्स ऑन फेसबुक, या फिर कहीं कहीं पे तुम कुछ वियर्ड लिखने लगे हो, तुमको समझ में भी आ रहा है कि हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर कैरेक्टर। अच्छा। Yeah, and some people straightforwardly came to me and said that you are a gay basher and I think कि तुम खुद ही homosexual हो and that is why you are doing all this fuss. So how do you handle this negative people and negative thoughts pouring to you unnecessarily? कैसे handle करते हो आप इसको? शुरू में परेशानी तो होती थी, पूरा दिन खराब जाता था मेरा, बहुत एंजाइटी लेवल बढ़ जाता था,
बट देन मेरे ना प्रोफेसर ने एक चीज मुझे बताई थी, शॉर्ट स्टोरी है, एक बोलती हूँ। एक मेंढक था, 2-4 मेंढक वहां पे थे एक जगह पे, एंड दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग टॉलेस्ट बिल्डिंग इन देयर एरिया। कुछ माले हुए और उसके बाद ना सारे गिरने शुरू हो गए मेंढक नीचे। एंड देयर वाज वन टोड कि वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, किसी की कुछ सुन ही नहीं रहा है, बस चले जा रहा है। पीपल आर शाउटिंग कि ये तो नहीं पहुंचेगा, अगले माले पे जाके ये तो गिरेगा गिरेगा। लेकिन ही क्रॉसेस द 50 मालाज ऑफ द बिल्डिंग, जो भी हो, और वो ऊपर जाके ही इज अ विनर। तो जब नीचे आता है तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कि कैसे तुम जीत गए इतना सब नीचे से। देन ही सेड, सुनाई नहीं देता है। तो सुनो ही मत, जो भी आपको निगेटिव चीजें बता रहे हैं उनकी सुनो ही मत, उनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर दो। या सो दैट हैपेंड। तो अभी आते हैं पॉजिटिव रिमार्क्स पे। या पॉजिटिव रिमार्क्स बहुत सारे थे, बिकॉज पीपल सॉ द चेंज इन मी। ये जब मैंने किताब लिखी तो उसके बाद एक अथॉरिटी सी आ गई कि आप अपने ओपिनियंस फर्मली रख सकते हो दुनिया के सामने, किसी के माइंडसेट को चेंज करने की ताकत रखते हो। तो लोग मेरे साथ ज्यादा रिस्पेक्टफुली भी बात करने लग गए कि नाउ शी इज एन ऑथर, तो एक अथॉरिटी बन गई। फिर लोगों को ये भी लगा कि अरे ये तो बहुत कुछ कर सकती है, मतलब शी इज नॉट जस्ट इनटू वन सब्जेक्ट जिसमें उसको डाला गया है वो उसी में आगे जा रही है, आगे जा रही है। वॉट एवर शी इज गोइंग इनटू, शी इज कॉन्करिंग द फील्ड। तो ये भी विनर का एटीट्यूड भी आ गया उसमें। वेरी गुड। इवन आई रिमेम्बर आज ही सुबह, आई डोंट नो, आई डोंट हैव परमिशन टू शेयर दिस और नॉट, बट आज ही सुबह रुचा ने मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। उसमें वन ऑफ हर टीचर, जिन्होंने इनको पढ़ाया है, he wrote something about book writing process and he said, ma'am, I want to do. So the teacher started telling you as a ma'am, it's a big thing, because now when they see कि you are an author and a lot of people want to be and a lot of people want to be and cannot be because इसके लिए grit लगता है, will लगता है, then you have to have the right people surrounded by you, तो बहुत सारी चीजें लगती है। बट सडनली पहले मैंने पढ़ा, मेरे को भी वो मैसेज 2 बार पढ़ना पड़ा कि व्हाई आर यू सेइंग दैट, समवन इज टेलिंग यू मैम एंड यू आर सेइंग इट कि आप मत बोलो मुझे मैम, बट आई रेड इट करेक्टली। सो वो आपके टीचर थे एंड टीचर इज सेइंग यू मैम, एंड आई आल्सो फील दैट टीचर्स के लिए हम हमेशा छोटे ही रहने चाहिए। तो बट इट इज अमेजिंग फीलिंग कि आपके टीचर्स को भी लगता है कि यू हैव डन ग्रेट इन योर लाइफ, एंड जी इंस्टेड ऑफ टेलिंग नेम दे स्टार्ट टेलिंग यू द मैम। इट्स अ ग्रेट थिंग टू read. When I read, I was very happy about. Yeah. I always keep shouting कि बुक लिखने से आपका जो वर्ल्ड में आपके जो स्टेटस है, जो अथॉरिटी है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जी। So I'm very happy. So you had a lot of positive. How was your parents? When they heard that you are writing the book, कैसा था उनका रिएक्शन, कैसा था? थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन था। आई गेस दे वर अ बिट ऑफ प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स मी कि बेटा ऐसे कुछ लिख रही हो, सोच समझ के लिखना, कुछ गलत मत लिख देना कि आगे चल के आप ही को परेशानी हो जाए ऐसे। बट जी तो इन अ वे या वो लव है। आई रियली अंडरस्टैंड कि वो मेरे लिए परेशान हो जाते कि बेटा आप ठीक करो, जो भी करना है ठीक से करो, आप संभल के करो। और जब उनको पता चला कि मैं किस टॉपिक पे लिख रही हूँ एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी, और जो कि बहुत ही साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये नहीं कि मुझे ऐसे लगता है ये है वो है, नहीं, रेफरेंसेस के साथ और जो भी इंटरनेशनल ऑथर्स है उनके साथ डिस्कशन करके ये किताब पूरी हुई है। तो दे वेयर वेरी हैप्पी एंड दे वेयर रियली वेरी प्राउड। और how much time did you take to write a book? कितना टाइम लगाया? सर जैसे आपने बोला था फेसबुक पे, मैंने जो आपका पढ़ा था, एक फ्री सेमिनार का आया था आपका एड, ठीक है? तो वो एड पढ़ के ना, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन मुझे लगा था दिस इज अ स्कैम। सबको ऐसा लगता है शुरू में
ये तो हो ही नहीं सकता है कि 30 दिन में कोई एक किताब लिखे। तो मेरे पास सितंबर में ये आया था एड, और पता नहीं ऐसे ही कहीं से आ गया था। और एक सेमिनार में आपने बोला था कि आप कभी कभी ना गाइडेड लाइफ स्टेज में पहुंच जाते हो। तो मैं जी, तो ये चीज मेरे दिमाग में उस वक्त चल रही थी कि मैं लिखूंगी एंड देन आई सॉ योर पोस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सितंबर वाला मेरे से मिस हो गया। तो मुझे लगा हाय अब मैं क्या करूं, अब मुझे फिर से तो मिलेगा नहीं, पता नहीं कौन थे वो ऑथर्स, नाम भी याद नहीं, लिखा भी नहीं। देन सडनली इन नवंबर यू रीअपियर्ड। तो नवंबर में मैंने फिर से आपको कांटेक्ट किया, आपका फ्री वाला जो वेबिनार, ये सॉरी हमारा फिजिकल सेशन था वो अटेंड किया। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट फील हुआ आप लोगों के लिए कि हाँ ये सच में हो सकता है। तो आप बोल रहे थे कि 30 डेज में होगा, बट दैट टाइम आपने ये भी बोला था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है, बहुत ज्यादा। जी, तो आई रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली 23rd ऑफ नवंबर 2019 को हमारा बूट कैंप हुआ था। तो दैट वाज माय सेकंड बर्थडे एज एन ऑथर। आप ही ने बोला था ये। Yeah, because you know when you decide to write, your life changes. जी. And once book comes in, मतलब जनरली वो इंसेप्शन होता है, और जिस दिन बुक रिलीज होती है उस दिन एक्चुअली आपकी डिलीवरी होती है, बट आफ्टर दैट न्यू लाइफ ऑल टुगेदर। या तो मुझे लगा था, मैंने डेडलाइन भी 31 दिसंबर का रखा था, बट ड्यू टू फैमिली फंक्शंस एंड ऑल मेरा दिसंबर पूरा चला गया। Then I started seriously writing since January first week. और मेरा फेब के फर्स्ट सेकेंड वीक में पूरा हो गया था फर्स्ट ड्राफ्ट। तो लगभग 40 दिन में मैंने अपनी किताब पूरी कर ली थी। तो फिर विश्वास हो गया कि हो सकता है, it is possible. Yes, yes, यूरेका। And what do you think? What is the secret behind writing book in 30 days? What I say, or 40 days? जो हम बोलते हैं कि होता है, आपको क्या लगता है? What is the main ingredient? What that makes that happen? क्या reason हो सकता है उसका? जैसे सर आपने उस सेमिनार में बोला था कि जस्ट लिखते चले जाओ, लिखो, आज से शुरू करो और हर दिन कुछ ना कुछ लिखो। Correct. तो इसके बारे में मैंने कहीं पे एक पढ़ा था ब्लॉग में कि आपको कैसे लिखना है, क्या है, आपको कोई आइडिया नहीं होगा शायद, बट राइट ऑन लूज पेपर्स ईच डे, राइट समथिंग, राइट ऑन लूज पेपर सो दैट लेटर ऑन यू कैन रीअरेंज दोज पेपर्स अकॉर्डिंग टू योर विश एंड विल। करेक्ट। और फिर आपकी कहानी बनती चली जाएगी। और उसमें आपकी सलाह एक ये भी मानी थी मैंने कि आपको जहां पे टाइम मिले, मतलब वो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मुझे इस पे लिखना है, इस पे क्या लिखूं, मैं कहीं पे बैठूं तो मैं पढ़ूं इसके बारे में। तो बहुत सारा रिसर्च करना है। और उसके बाद यू नो इवन इफ आई एम वेटिंग फॉर समवन समवेयर, मैं अपना व्हाट्सएप पे टुक 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 चालू कर देती थी, उसको लिखती थी एंड आई यूज्ड टू सेंड इट टू माय अनदर नंबर, या फिर मेल पे लिखती थी। तो दिस वे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एंटायर डे योर माइंड इज trying to search the reasons, topics and content for that particular topic. अपने आप ढूंढने लगता है। जी जी, exactly, and things start coming to you. आपको ढूंढने नहीं पड़ता। You become magnet. You start attracting things in your life. Yes, yes. And I generally, when I also write, I also wrote 2 books. So मेरा personal experience है, जब आप book लिखते हो ना, then suddenly you have lot of aha moments in the process of writing. मतलब ऐसा लगता है ये क्या कैसे लिख दिया मैंने, मतलब मेरे अंदर था क्या। I call it you dig diamonds inside and take it out on the paper. तो ऐसे कुछ आहा मोमेंट शेयर करेंगे हम सब हमारे सबके साथ। मेरा सबसे बड़ा आहा मोमेंट था जब मेरा आर्किटेक्चर पूरा हो गया था बुक का, एंड दैट वाज इन योर बूट कैंप ओनली। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने शुरू में एक कहानी लिखना शुरू किया था, बट कीपिंग इन माइंड के पीपल और द ऑडियंस विल बी मराठी रीडर्स। करेक्ट। क्योंकि मराठी में किसी ने अभी तक ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यू नो व्हाट पीपल हैव रिटन इज अबाउट गेज, अबाउट देयर राइट,
लेस्बियंस, अबाउट देयर राइट्स, तो ये सब ने सब लिखा है। लेकिन ये एंगल जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि इन दोनों की जब शादी हो जाती है तो इनका मैरिड लाइफ कैसे टर्मोइल में चला जाता है। करेक्ट। तो ये जो टॉपिक था, फिर इससे कैसे उभरना है, आपको सारी तरीके से सोचना है कि सोशली मैं कैसे उभर सकती हूँ इससे। तो ये सारी जो चीजें हैं इमोशनली, ये चीजों के बारे में फिर मैंने सर्च करना, पढ़ना, लिखना सब शुरू किया। और फिर जब आपके बूट कैंप में मैं आई तो मुझे पता चला कि यार ये ऐसे तो नहीं लिखना है मुझे, मैं ऐसे तो लिखूंगी नहीं। जो स्ट्रक्चर आपने बताया उसके बाद मैंने पहला वाला जो था पूरा डंप कर दिया मेरा मटेरियल। यस, तो ऑलमोस्ट मैं हाफ ऑफ माय बुक लिख चुकी थी मराठी में, बट आई स्क्रैप्ड इट। एंड वहीं पे हमारे आपने इंडेक्स बनाए थे, तो वो इंडेक्स को मैंने फॉलो किया एंड दैट वाज द बिगेस्ट आहा मोमेंट। एंड लेटर टू दैट द कंप्लीशन ऑफ द बुक, कि वाओ कर लिया। कंप्लीशन इज अमेजिंग फीलिंग, बिकॉज जब आपको लास्ट डॉट लगाना होता है कि हाँ अभी मेरा काम हो गया, माय वर्क इज डन, नाउ इट विल बी डन बाय सुपरफास्ट ऑथर टीम, दीपक करेंगे, कैलाश करेंगे, निको करना है, मैं तो हूँ, मेरे तरफ से काम कंप्लीट हो गया। सो हाउ वाज दैट फीलिंग? वो उसमें कैसा लगा जिस दिन भेज दिया आपने फाइल? जब पूरा हुआ तो पहले तो बहुत प्राउड फील हुआ कि फाइनली मैंने पूरा कर लिया। रुचा, आपका कैमरा बंद हुआ, एक बार स्टार्ट कीजिए फिर से। सर आपका भी ना स्टक हो गया है। ठीक है, वो इंटरनेट की वजह से कभी-कभी होता है, when internet goes down then yeah mine is on again। okay yeah, तो वो जो था ना एक प्राउड मोमेंट था एंड द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अ ड्रीम कम ट्रू, ऑन क्लाउड 9, और क्या क्या बताऊं, बहुत कुछ लगा। और जिस दिन मेरा किताब, जिस दिन मैंने अपना लास्ट सेंटेंस लिखा, मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट का, उसके बाद तो काफी रिविजन्स हुए, कुछ मटेरियल ऐड भी हुआ, लेकिन जब मेरे फर्स्ट ड्राफ्ट का लास्ट सेंटेंस हुआ उसके बाद माय माइंड वाज लिटरली लाइक क्रिस्टल क्लियर एंड वेरी काम। Yeah, book writing is also, मेरे को कभी लगता है it is meditating process, cleansing process है। जब आप अपने अंदर टॉपिक को लिखते हो तो अपने अंदर बहुत सारे unresolved emotions हैं, इनको resolve करते हो, any topic, and then you write the right. Yeah, absolutely. So it improves your thought process internally. जी। And कुछ टिप्स देंगे। There are a lot of authors who have joined us today. बहुत सारे ऐसे authors हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, जो लिख रहे हैं अभी बुक, they are writing it. कुछ टिप्स देंगे, कुछ क्विक 2-3 टिप्स जिससे उनका बुक फिनिश हो जाए जल्दी से। जी, क्विक टिप्स यही है कि आपको डेली लिखना है। आप कोई टाइम फिक्स कर लो, या मैं सजेस्ट करूंगी ब्रह्म मुहूर्त पे अगर आप कर सकते हैं, then that is the very calm time, जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फोन नहीं है, फेसबुक ये वो सब आप बंद कर दो, एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए आप फोन को, और वो डेडिकेटेड टाइम रखिए, और कुछ ना कुछ कम से कम 4 लाइन ही सही, 1 पेज ही सही, आप हर रोज लिखिए। लूज पेपर्स पे लिखिए, जिसकी वजह से आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगी, परसिवरेंस इज की टू सक्सेस, परसिवरेंस इज मस्ट। आप कंसिस्टेंट रहिए और आपके ड्रीम को परस्यू करिए। वेरी गुड। सो अनडिस्टर्ब जाइए, फोन को दूर रखिए, परसिस्टेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए, एंड डेली कुछ ना कुछ लिखते रहिए। दीस आर द टिप्स फ्रॉम रुचा टू फिनिश राइटिंग क्विक। और एक लास्ट क्विक टिप ये भी बताऊंगी मैं, कि जब भी आप लिख रहे हो तो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, इसके बारे में आप सोचिए कि ऑडियंस को क्या पढ़ना है या ऑडियंस को क्या जानना है, जिसमें उनको इंटरेस्ट हो सकता है। सो दैट विल आल्सो गिव यू अ गुड कंटेंट। So एक मिनट, I just want to ask a question to everyone who's attending. I want to know that how many of you are able to see Rucha clearly? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रुचा, you have an internet issue,
and your internet is down, ऐसा मुझे लग रहा है, because your father is also saying that he want to see you, so इसलिए मैंने specific लोग के पूछा है. But nothing to worry, your internet is out of our control, so we cannot do anything about it. Yeah. But let's do it. Let's hope that it improves automatically. Now I want you to thank whom do you want to thank in the book writing process की ये कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिनके कारण the book हुआ and it would be better. I want you to thank publicly. आपने personally तो बोला ही होगा उनको, but publicly I want you to. सर थैंक्स बोलने के लिए लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिसे भूलना नहीं चाहिए वो है हमारे भगवान और हमारे माता पिता, जिनको कभी नहीं भूलना चाहिए. एंड देन कम्स योर टीचर्स, मे बी स्कूल टीचर हो या लाइफ के टीचर्स हो, लाइफ एक्सपीरियंसेस हो, योर मेंटर्स हो, योर फ्रेंड्स जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ते हैं. ऐसे सारे लोग जिन्होंने मुझे अपने बुक के प्रोसेस में हेल्प की, उन सब लोगों को मैं किसी एक का नाम लेके किसी दूसरे को बुरा फील कराना नहीं चाहती हूँ. दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट दे ऑलरेडी नो. सो थैंक यू वेरी मच एंड अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम माय साइड. Thank you very much. And giving gratitude is very, very important practice we all should keep in our life, because whatever you appreciate that grows. Yes. Appreciate करते हैं बहुत grow करता है. So and one more thing I want to ask, what is the role of mentor in book writing process? आपको लगता है कि कोई अगर आपको support करता है book writing process में, तो would it be a good thing to do? मतलब what is the role of mentor in book writing? में बहुत सारे लोग बोलते हैं किताब तो हमें लिखनी है, उसमें mentor क्या करते हैं? But नहीं, I'll defer to this. I'll disagree. मेंटर का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. आप कोई भी चीज जिसको हासिल करना चाहते हो एक सिस्टमैटिक वे में आप उसको काम करो तो आप उसको इजीली हासिल कर सकते हैं. तो ये मेंटर जो है he is someone who allows you to see hope inside yourself. yes. वो आपकी होप को जो है ना वो हमेशा उसको कभी मरने नहीं देगा. Correct. जब भी आप लो फील करोगे वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे. सो ही इज लाइक अ गाइडिंग लाइट टू यू. आपके डार्कनेस से आपको बाहर निकाल के सक्सेस दिलाने में मेंटर का बहुत बड़ा हाथ होता है. योर मेंटर इज योर पर्सनल एडवाइजर, योर पर्सनल टीचर, देन योर रोल मॉडल एंड एज वेल योर फ्रेंड ऑल्सो. Correct. Yes. Yeah, fantastic. अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, then I'll open it for audience to ask question. My last question is, what is beyond book? अभी बुक हो गई है. How do you want to take the teachings of this book so a lot of people can change their life who are suffering? तो क्या plans हैं आपके कि beyond book पे कैसे काम करना है आपको on the same topic? जी कैलाश जी, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं सेम टॉपिक में काम करती हूँ तो देयर आर लॉट ऑफ विमेन आउट देयर कि जिनको इस चीज को समझने की जरूरत है. दे आर स्टिल नॉट इन अंडरस्टैंडिंग मोड इवन कि उनके साथ हो क्या रहा है. And I specifically named this book as Secrets to Mismarriages, the Ultimate Survival Companion, क्योंकि this is literally a handy book. जो आपको जो भी परेशानी आएगी, कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि नो वन अंडरस्टैंड्स यू, लेकिन ये जो किताब है, दिस बुक अंडरस्टैंड्स यू. ये आपको समझती है एंड ये आपको गाइड भी करेगी कि आपको कौन से सिचुएशन में कैसे फील हो रहा है और उससे कैसे बाहर निकलना है. तो इसी सिलसिले में मैं मेंटरिंग भी करती हूँ. बहुत सारी लेडीज है ऐसी जो बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा एंड शेम इशू अटैच टू दिस टॉपिक, दे वांट प्राइवेसी. तो मैं प्राइवेट कॉल्स या फिर फेसबुक वगैरह के द्वारा इनसे जुड़ी हुई हूँ. इनको मैं मेंटोरिंग कर रही हूँ. इसके आगे ये भी है कि मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आर यू अ फेमिनिस्ट. तो इट्स नॉट कि मैं सिर्फ वुमेन के बारे में बोल रही हूँ तो आई एम हार्डकोर फेमिनिस्ट लाइक दैट. इसका अगला, इस कॉइन का जो दूसरा साइड है वो ये भी है कि इसमें मर्द भी सफर करते हैं. तो हो सकता है कि मेरा अगला स्टेप ये है कि आई विल बी राइटिंग अ नेक्स्ट बुक विच विल बी ऑन अनदर एंगल, अनदर पर्सपेक्टिव. तो बुक राइटिंग तो अब यहाँ से शुरू ही हो चुकी है.
तो फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, अब तो ये चलते रहेगा. What is the second book you are working on और plans में है कि ये करना है? इसमें अब शादी है तो शादी में 2 लोग हैं. जब एक औरत पे बीतती है तो उसके बारे में मैंने बोला है. अब एक मर्द पे बीतेगी तो उसके बारे में भी मुझे बोलना जरूरी है, तो वो भी मैं बोलूंगी. तो मे बी नेक्स्ट बुक में ये हो सकता है कि मर्द पे क्या असर होता है. जी, मेल साइड से, सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, कि कैसे सोच होती है और कैसे हम इस चीज को सक्सेसफुली चेंज कर सकते हैं. Yes, very good. So, this I want to open the forum for anyone to ask the question. Now, your Rucha will answer all of your questions. तो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आया हो when she was speaking, or generally about book writing or anything, in relationship, in marriages, any kind of question. If you want to ask Rucha, then the forum is open. You can type in the comment box, chat box. I will ask the question to her and she will answer your question. Yeah, while they are asking, I'll tell you some other things that have come up in my mind just few time back. कि मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेस डिजाइन करूँ इसके लिए. मतलब अभी जो मैरिजेस में फेलियर आ रहा है, तो I want to do mentoring and create courses on how to create marriages that last. तो उसमें मेरे दिमाग में भी आया है, पहले let you finish it then I'll ask. Yeah, तो इसमें जरूरी नहीं है कि मैं मिक्स ओरिएंटेशन के बारे में ही बात करूं. It will be a general kind of course. Yeah. That's been fantastic because you know we are not taught in Indian culture कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को रहना कैसे चाहिए. बस एक बार मुलाकात करवा देते हैं, आजकल एटलीस्ट 4-5 बार मिलवा देते हैं, and then you go and start staying with a stranger, but आपको रेडी नहीं किया जाता है. You don't get ready for it. I think it's a need of the hour that people should understand both side of stories. How women should understand the man and his family, and man should understand woman and her family. So it becomes a friendly relationship for a lifetime. It is a need of the hour. I have a request है रुचा आपसे. A lot of people are attending the call today, and I want you to send them a signed book copy, or author signed copy to all of the people who want the copy from you. Would you be able to? आप करेंगे? बिल्कुल पक्का. Okay. If you are saying So on my request, he is accepted. So anyone want to read her book, Secrets to Mismarriages, का link मैंने डाला हुआ है, and she will be sending you signed copy. मतलब she'll sign the copy and send it to you. So if you book it right now, so please do that. Please click on it, book the copy. And additionally, I was discussing with her कि आप कुछ हमारे authors को special rates दीजिए. तो she has already given, I think 15% discount on book rate. So मैंने link post किया है. If you want signed copy from Rucha on her book, then please go ahead and buy this copy. She will send you the book. So any other question? Link is not opening. Okay, let me check. Rucha, can you send me the link again? It is not opening. Yeah, sure. I will send it up. Let me see why it is not opening. Can I send you on email? Or you can post it directly here in the group chat box. Group chat box. Or send me on WhatsApp. Enable chat. Yeah. Or the chat. And there you have to type your comment. Can you see that? Enable chat. No, not enable chat. Not that's a setting. Okay. Chat का option. उसके नीचे attendees है. Attendees के नीचे chat. Or you can send me on WhatsApp. I'll post it. Yeah. I'm sending you WhatsApp. अब मुझे भेज दो. Till the time you type the questions, let me ask. There are 1 or 2 questions that have already come in. Let me post this first. Then you answer the questions. The link is working fine, sir. Here.
No, this is event webinar jam का link भेजिए. No, I want your Moria 15 वाला link. Is it not Moria 15 वाला link? Yeah, that is not working. That is not working. Let me also try searching. Chat, okay, fine. Just give me a minute, everyone. I'm just trying to send you the link again. I had the link, but that link is not working. So see if this link is working now, because it is working fine on my both the devices. Did you send me again? आपने भेजा? Yes, I have sent. Yeah, I have sent you on WhatsApp, and I have sent here, posted here in the chat box. Okay. Can you check because I can't see the chat box में comment. Just wait. WhatsApp में भी नहीं आया है. WhatsApp में भी नहीं आया है? I'll send you a message called hi. उसमें लिखो मेरे को. आपने जो मुझे भेजा है ना 8:40. Yeah. That is event webinar jam का link भेजा आपने. Oh shit. Okay, I'm so sorry. So this is a very good book because as a process we go through the books. So I know Abdul ji book link is not opening. That's why I'm trying to help. So yeah, this link is not working. This link is not working. What is? Can you suggest me what else can be done? आपके Insta Mojo के अंदर link रहेगा. Yeah, so it is working. I don't know if you can see this because of the reflectance, but okay, so you send me the link, Rucha, later on. I will send it to my community, and I will make sure that if someone wants, they should be able to book. At least people who have attended, I'll send the link. So just check once again, because I have refreshed it and made it once again inactive and active, both. So yeah, it's working. It's working now. Okay. I'm putting the link. It's working now. Yes. Okay. So this is the link for Rucha's book. For some time, but click on it. If you book the copy, she will send you the personal signed copy. And it is nice to know book because the way life is changing, we need to understand a lot of things which no one is talking about. No one is talking about for a girl who is stuck in a relationship where husband is gay. She does not know whom to talk to, even if she goes and talk to her mother, because generally girls talk to her mother. If she goes, mother also does not know what answer she should be giving, because this is a new topic. The way Corona is new, the way internet is new. This is something new which we are experiencing now. It is not new. It has been happening for a long time. At least we have started talking about it now. So what I wanted to go book, take the copy. She will send you the copy. Now let me go to the question. Rucha, some questions for you. There was a question. Kedar, do you feel fear or to write on? So the question is from Kedar. Do you feel fear to write on such a subject because book writing itself is a money investment? What if you are not able to sell or not acceptance? Yes, this phase came to me. I'll tell you exactly when this stage came. Just after I finished my book, I was very happy that time. But the next thought came to my mind was, what if this book is not sellable? People, if they don't like it or they don't want to read it, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मुझे भी जानते हैं और इस बुक के बारे में भी जानते हैं, but still there is a taboo to it
जो भी अटैच्ड है इसके साथ, कि मैं कैसे इस बुक को अपने घर में रखूं। करेक्ट। तो इस वजह से भी बहुत लोगों ने इसको खरीदने से वो मना कर रहे हैं। तो ये चीज मेरे दिमाग में आई थी, बट यू नो अगर आप फियर करके कोई स्टेप ही ना लो, तो दैट मीन्स देयर इज अश्योरेंस टू फेलियर। अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो तो देयर आर चांसेस दैट यू विल फेल और यू विल सक्सीड। तो कोशिश ये करो ना कि आप सक्सीड करो। या अगर कदम नहीं उठाओगे तो पक्का फेल होगे, कदम उठाओगे तो चांस तो है सक्सेस में। जी। एक क्वेश्चन है पुरुषोत्तम मिश्रा जी की तरफ से, इज इट बेटर टू पैच अप और गो फॉर डिवोर्स बिकॉज इट्स डिफरेंट ओरिएंटेशन? सी डिफरेंट ओरिएंटेशन मैरिजेस जो है वो अगर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रही है उससे, आई नॉट स्ट्रेट फॉरवर्डली से कि आपको उससे निकल जाना चाहिए या उस पे स्टिक वहीं पे रहना चाहिए, बिकॉज एवरीवन्स प्रेफरेंसेस आर डिफरेंट। तो आपके प्रेफरेंसेस क्या है ये लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। और अगर आपने प्रेफर किया है कि आप बाहर निकलना चाहते हो, यू वांट टू हैव बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन योर लाइफ, देन आई विल सजेस्ट कि मूव आउट एज सुन एज पॉसिबल। But if there are children involved in this marriage or there are some other things like financial aspects होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आपने एक साथ शुरू की हुई होती है, अगर आप उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हो तो there are always counselors, आप काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हो, and there are mutual decisions which will be taken on maturity level कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। Even I also would like to say पुरुषोत्तम जी कि you know केवल ओरिएंटेशन के बेसिस पे डिवोर्स या पैचअप का डिसीजन नहीं ले सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर, बट बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं और उसके लिए आप काउंसलर के पास जाइए। रुचा हरसेल्फ इज काउंसलिंग लॉट ऑफ पीपल एंड शी वुड बी राइट पर्सन टू एडवाइस वन टू वन, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बिकॉज दिस हैपेंस इन अ प्राइवेट रूम एंड विद प्राइवेट टॉक्स, और कौन दो लोग हैं वो भी पता नहीं चलता है। Rucha never shares with anyone, the person never shares with anyone, and this is very, very confidential discussion. So it is difficult to answer only on orientation. Yeah. Dr. Mahatre is asking, Rucha, how was process experience to convert first draft of book, then make it forward to final draft? So first draft से final draft तक जाने के लिए do's and don'ts. Do you want to suggest something to Dr. Mahatre? डूज एंड डोंट्स ऐसे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत से लोग होते हैं कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स से डर जाते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि देर आर लॉट्स ऑफ टूल्स आउट देयर। आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, इसकी फियर अपने मन में रखने की कि मैं कैसे लिखूं, अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो मैं गलत लिख रहा हूं तो क्या। देर आर मॉडरेटर्स एज वेल, वो आपको अपना मैन्युस्क्रिप्ट चेक करके भी दे सकते हैं। देर आर मेनी पीपल, मेनी सर्विसेज एंड मेनी टूल्स अवेलेबल। सो जब भी आपके दिमाग में अपना टॉपिक फिक्स हो जाए, स्टार्ट राइटिंग विदाउट एनी इनहिबिशन, विदाउट एनी फियर। और जब आप लिखते चले जाओगे, देन लिखते 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 आपका जो राइटिंग है ना वो भी रिफाइन होते चला जाएगा। yes. तो आप इस चीज का एकदम ख्याल मत कीजिए। एंड व्हाट डोंट्स आई विल सजेस्ट कि किसी के ऊपर आप रिलाय अगर करते हो तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग यू आर डूइंग। मान लो कि आप किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन पे रिलाई कर रहे हो फॉर द क्वालिटी ऑफ योर बुक, तो दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल डूइंग। यू शुड क्रॉस चेक योर मैन्युस्क्रिप्ट एट लीस्ट 5 times. I have done it more than 10 times. Yeah. Minimum 5 times तो करना चाहिए, पर करना क्या, you will reread, कब वापस पढ़ेंगे, you will find out the flow, कि flow सही आ रहा है क्या, कुछ मिसिंग है या कुछ repetitions हैं, so you can correct those repetitions को आप कम कर सकते हो। और flow में अगर कहीं गड़बड़ लग रहा है, then you can take topics up and down, वो सब when you read it multiple times. Even if you are a स्लो रीडर तो भी मैं, और वेरी वेरी एक्यूरेट रीडर तो भी 3 बार तो मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा। 3 times इज मिनिमम आफ्टर फर्स्ट ड्राफ्ट, बट इफ यू आर फास्ट रीडर यू कैन गो फॉर 5 times आल्सो, एंड मोर इज बेटर, बट देयर इज नो एंड टू द मोर, सो यू हैव टू समवेयर कट एंड से कि ओके दिस इज द ड्राफ्ट एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एनीमोर ऑन दिस।
वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर कि जब मैंने काम किया तो आई वाज आस्क्ड टू वर्क ऑन पीडीएफ व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ मे बी टू द पब्लिशर्स एज वेल कि आप जब काम करोगे वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप काम करते हो तो यूज ट्रैक चेंजेस. तो आपने कब कौन सा चेंज किया है, किसने कौन सा चेंज किया है, वेदर आपके मैन्युस्क्रिप्ट को चेंज जिसने किया है, मॉडरेटर होगा, एडिटर होगा या कोई भी होगा, उसने भी अगर चेंज किया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स विल कम अप. तो उसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बार चेंज हुआ है, कौन सा कब चेंज हुआ है. Correct. तो बेटर इज कि आप वर्ड पे ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करो. Okay. Any other question from the audience? Because it is 8:56, the scheduled time was 8 to 9. If there is some more questions, please let me know, or I would proceed towards ending the program in a structured way. So I'm assuming, and there are no questions. If it comes in, I will still answer it. So first of all, I would like to thank Rucha's father who attended the program, because it is a big blessings when your parents are with you. So अगर उनका सर पे हाथ रहे तो अच्छा रहता है. So I want to thank you sir for attending this interview for Rucha and spending your time with all of us. हम सबके साथ अपने time spend किया. And if your mother is listening, then I thank her also. And more of every one of you who came, heard Rucha about her story, about the book, about her process of writing, and a lot of topics she spoke. And thank you for giving a special offer of 15%, sending the signed copy. So you did a lot of things for all of us, Rucha. So I would like to thank you for giving us time from your life and spending an hour with us, so we could learn more about your book, about you. And if we find someone needs and help in any kind, not only in mixed marriages, but any kind of marriage relationship issue, if we find someone, definitely we know whom to go for and whom to suggest on. So thank you for attending and helping us understand your strengths on relationship too. So thank you for coming and spending time with us. And thank you everyone to join us again. And the way you've been attending this multiple authors, soon you will be here. I'll be taking your interview too. And soon I meet you soon again on next Friday with the next author. And see you again. Thank you very much. Acha, Joshi sir is saying mother was also listening. So thank you ma'am for attending her interview. Okay, everyone, bye-bye, good night. ध्यान रखिए. Bye-bye, good night. Thank you everyone. Thank you, bye-bye.